it's a very dark day in India's secular democracy, where this government, by sheer brute force, has brought about a bill which is so patently unfair. Right now, we are unhappy with the result, but we will continue to fight to defend the constitution, to protect the rights of minority institutions. On the Waqf bill, it was a much more protracted process. It took a very long time. जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय। Yes, it was passed by 288 to 232. And I think when you saw what the numbers were in the 17th Lok Sabha, where bills would pass by 300 and 119, you see there is only a 50 vote vote gap here, and you realize just how unpopular and how against the public mandate this bill is. And it is only because of the party whip and because of the two allies that they have just managed to get through by the skin of their teeth. 272 is majority, they've got 288, and that's really close. You saw all the points that have come up, and frankly, it's a very dark day in India's secular democracy, where this government, by sheer brute force, has brought about a bill which is so patently unfair and so patently against the fundamental rights of Article 25, Article 26, and basically there are 3 or 4 clauses in the amendment. One is that you have to say that you are practicing Islam for 5 years. Now, I'm a Hindu Brahmin, a woman. How do I prove that I'm a practicing Hindu Brahmin? How do you do it? How do you ask one person or one faith to prove that they're 5? The second, they say that only if you're a Muslim of 5 years can you donate something. In my constituency, for example, when a Muslim did not have a graveyard or did not have land, there were rich Hindu landowners, zamindars, who have donated land for Muslim graveyards, for masjids, for all of this. So is that all going to be declared null and void? The third they are saying is that you must have non-Muslims on the Central Waqf Council and in the state law boards. Out of 22 members on the Central Waqf Council, they are saying that only 10 need to be Muslim and 12 can be non-Muslim. So again, you will have a majority of 12:10. And if the government wants to take over a land for a period of 5 years, you can do that without a murmur. And this is exactly what they are trying to do. So these amendments are basically, it is sending a very chilling effect to the Muslim community that संभाल के रहो, हमारा पैरों के नीचे रहो. This is it. The only thing that the message we are sending to the Muslims in this country is, know your place, we will show you your place. And that's where our leader Mamata Banerjee and our party, Trinamool Congress, believes that a Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not paw tale or at our feet. A Muslim's place is next to us with their head held high, walking together in a secular India. And that is what this bill has destroyed today. On the Waqf bill, it was a much more protracted process. It took a very long time. Went on till almost 2 o'clock in the morning, with many of the amendments being put to a vote. At the end of the day, the government prevailed by a fairly small majority of about 50 votes. It wasn't, I must say, an easy matter. There were very strong views expressed on all sides of the debate. I myself did not speak in the debate, but I can tell you that as far as Parliament is concerned, a very thorough airing of all the issues was heard, and that's all that happened today. वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल देखो जी, सोशल स्ट्रक्चर के लिए खतरा है. अब देखिए जिस तरीके का माहौल बन रहा है पूरे देश में, आप होली आ जाए उसमें माहौल देखिए कैसा बना दिया है. रंग किसी को मानता है कोई नहीं मानता, हम ये तो नहीं ना कह सकते, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. उसी तरीके से दूसरे और त्योहार, अभी ईद का त्योहार निकला है, उस समय भी यही हालात सारा हुआ है. तो ये सारी जो बातें हुई है ये ठीक नहीं है. और वक़्फ़ भी हमने इनको यही बोला है कि ये अभी समय नहीं है और संशोधन इसमें करने की, बहुत बड़े संशोधन की जरूरत है. जो आप कर रहे हो वो गलत है. हमारे सभी स्पीकर ने बड़ी दलील के साथ इनसे बात की, लेकिन वही बात है कि इनके पास नंबर है तो वो अपनी तानाशाही का तरीका अपनाते हैं. तो वो सोशल स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे. अब देश में तनाव है. एक ही गली में पहले लोग रहते थे, किसी को पता नहीं था कौन कौन रह रहा है. ये सबको बता रहे हैं, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, एससी हो, आप सिख हो. ऐसा बात नहीं है. वो ठीक है, हर कोई अपने धर्म में पक्का है, लेकिन देश इकट्ठे होकर यूनाइट होकर चलता है. See, the bill passed narrowly. There was a difference of only 56 votes. The bills passed with yeses being 288,
no's being 232. I think we put all the points that the people of India wanted us to put. Right now, we are unhappy with the result, but we will continue to fight to defend the Constitution, to protect the rights of minority institutions, and we're going to make sure and be vigilant that this bill is not misused to create a further law and order situation in the country. So, sir, what will the next step? So many points, we will watch what rules this government wants to make. I think it's very unfortunate that the way that not as we gave such constructive suggestions, but all our constructive suggestions were turned down. I think this government is not serious. They also showed the lack of knowledge related to Waqf. There are many things they were spreading false propaganda on. But most importantly, we will be vigilant to ensure that this law is not misused to create further law and order situation in the country. देखिए, ये संख्या बल के आधार पर ये बिल पास हुआ है, जबकि हम लोगों ने लगातार इस बिल का विरोध करते रहे और इस बात को कहते रहे कि ये सरकार की नीति, सरकार की नियत, सरकार का इरादा अच्छा नहीं है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है और न जाने कितने हमारे ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं। इन मदरसों को भी बैग मिलता है, आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रीम्बिल है, प्रीम्बिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। क्या हित में है, मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को, सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है? और अगर हित में है तो बताएं, क्या महिलाओं की जहां तक बात है, महिला पहले से उसके अंदर 2 महिलाओं का पहले से है और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो कौन सा नया तीर मार दिया सरकार ने? उन महिलाओं को क्या सम्मान दिया है? तो इस प्रकार से जो बिल ये क्या है, यकीनन हम ये कहते हैं कि आपस में बिल ऐसा होना चाहिए जो कि समाज की तरक्की हो। और देखिए, जब हर समाज की तरक्की होगी तो तभी देश पूरी तरह से विकास करेगा। अगर एक समाज को टारगेट करेंगे तो फिर देश के प्रति, आप विकास के प्रति वो वफादारी नहीं कहला सकते। देखिए, हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने पूरी तरह से इसके प्रयास किया कि बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिल जो पास होता है वो नंबर से होता है। तो सरकार के पास में जो बहुमत था, और आज भी मैंने जो सदन में बोलते में मुझे मौका मिला पार्टी की तरफ से, मैंने कहा इस बात को कि आने वाले समय में जनता उनके सहयोगी दल को, एनडीए के सहयोगी दल को माफ नहीं करेगी, चाहे वो बिहार के हों, चाहे आंध्र प्रदेश के हों या कहीं के भी हों। तो इसलिए और अब राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहां रोक सके। अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को, जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। देखिए, हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन, ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूं
4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। देखिए, राज्यसभा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं लोकसभा में हूं, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये अब जनता को के बीच में जाकर उनको जागरूक करें किस तरह सरकार उनके हितों पर डाका डालने का काम करे।